بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بجے جہلم جانے والی بس میں ہر عورت کو ایک بیگ پکڑایا جاتا ہے، اور اس بیگ میں لاکھوں روپے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ جہلم جانے والی سبحانہ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی۔ ہینڈ فری لگا کر سنیں۔ میں اسٹیشن پر آ بیٹھی، میری سانس پھول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جا کر مجھے تھوڑا سکون آیا تو میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، مگر سبھی لوگ مجھے اپنے آس پاس عجیب دکھائی دے رہے تھے کہ کہیں مجھے میرا کوئی اپنا مل گیا یا پھر کوئی جان پہچان کا سوچ سوچ کر میں تو ہلکان ہی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک سے میرے برابر میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ سی ہوئی۔ میں نے پلک جھپک کر اسے دیکھنا چاہا تو چونک کر پیچھے ہو گئی۔ اللہ خیر، یہ آدمی تو بڑی ہی بری طرح مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں اس کی توجہ کا مرکز کیوں بنی ہوئی ہوں؟ میں نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی مجھے علم تھا کہ یہ مجھے کیوں اس طرح ٹیڑھی میڑھی عجیب و غریب نظروں سے گھور کیوں رہا ہے۔ آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کی نظریں مجھے بے حد بے چین کر رہی تھی کہ کبھی میں اپنا سر کا دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی اپنی اوڑھی ہوئی چادر۔ یہ آدمی آخر ہے کون؟ میں اسے ٹھیک سے پہچان بھی نہ سکتی تھی۔ اس آدمی نے خود کو ایک بہت ہی بڑی چادر سے جو ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا، جس میں آدھا گھنٹہ تو اس آدمی نے مجھے گھورنے میں لگا ڈالا تھا۔ مجھے اس وقت نہ تو اپنی منزل کا پتہ تھا اور نہ ہی اس منزل تک جانے والے کسی بھی راستے سے میں واقف تھی، مگر پھر ناظرین اپنے اپنے سامان کی حفاظت کو برقرار رکھتے ہوئے ریڈی ہو جائیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں جہلم جانے والی بس آتی ہوگی۔ میں نے دل میں ہی شکر کے کلمات ادا کر دیے کہ بس کچھ دیر اور، کم سے کم مجھے اپنی منزل کا کوئی تو ٹھکانہ ملا۔ آخر میں گھر سے بھاگی ہوئی کب تک اس انجانے سفر یا منزل کی تلاش میں یہاں گھنٹوں بیٹھی رہتی، اور وہ ناس پیٹا آدمی مجھے اب بھی گھور رہا تھا۔ شاید اس کی نظریں میرے سامان پر تھیں، جبکہ میں تو جلدی میں گھر سے نکلتے وقت بس 2-4 کپڑے اور ابا کی الماری سے کچھ پیسے لے کر بیگ میں ڈال کر آدھی رات کے پہر گھر سے بھاگ نکلی، اور یہاں پہنچی تھی۔ اتنی دیر میں میرے سوچتے سوچتے ہی میرے سامنے ہی بس آ کھڑی ہوئی تھی، اور میں جانے کے لیے تیزی دکھانے ہی جا رہی تھی۔ اچانک میرا دل دھک سے رہ گیا جب اس آدمی نے میرے کان میں کچھ عجیب سے الفاظ کہے، اور مجبوراً میں بیگ ہاتھوں میں تھما کر بس کی اور چل پڑی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، اور جس بس میں سوار ہونے والی تھی وہ بس جہلم جانے والی تھی، اور میرے ہاتھ میں یہ بیگ شاید سب کی توجہ کا مرکز نہ بن جائے۔ میں اسے اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، اور مسلسل اس آدمی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ کاش میں یہ بیگ کھول کر دیکھ سکتی، مگر اس وقت یہ کرنا شاید میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ ہوتا۔ مگر میں نے بس کے چلتے وقت کا انتظار کیا اور اپنا صبر بنائے رکھا کہ ابھی تو اتنی بڑی مصیبت سے نکل کر یہاں آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی نئی مصیبت کے بیچ آڑے آ جاؤں۔ راستے بھر میرے ہاتھ کانپتے رہے، اور اس بیگ کو کھولنے کی بے چینی مجھے تنگ کرتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر سامنے بیٹھی اس بوڑھی عورت پر پڑی، جو بہت ہی امیدوں بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ مجھ سے کہنا چاہتی ہو، مگر بس کے اندر بیٹھے لوگوں کی وجہ سے وہ ہچکچا رہی ہو۔ میں نے ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کے برابر میں جا بیٹھی اور پیار سے کہنے لگی، کیا بات ہے اماں، کیوں روتی ہو؟ کوئی بات ہے؟ کیوں اس طرح اس عمر میں بھی اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھ سے کہو، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹی، میں بے بس لاچار اس عمر کے تقاضے میں بھی اس طرح ہر 2-4 دن بعد ماری ماری پھرتی ہوں، مگر کیوں اماں، ایسا کیوں؟ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بچے؟ وہ بوڑھی ماں ہنس پڑی، کون سے بچے بیٹا؟ جو شادی کر کر کے اپنے راستے چل پڑے اور مجھ بوڑھی ماں کو اکیلا تنہا چھوڑ گئے، اور 6 بیٹوں میں سے کسی کی اتنی مجال نہ ہوئی کہ کوئی مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ مگر کیوں اماں؟ میں پھر سے سوال کرنے لگی۔ بس بیٹا، کہتے ہیں نا، ایک ماں باپ اپنی 10 اولاد کی پرورش اکیلے ہی کر لیتے ہیں، پھر چاہے انہیں اپنا خون پسینہ کیوں نہ ایک کرنا پڑے، مگر 10 اولادوں سے اپنے 2 ماں باپ نہیں پلتے۔ وہ بڑھاپے کی ایک دہلیز پر یوں ہی ایک دوسرے کے سہارے اپنے ہی والدین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میرے بچے، ایک کے گھر جاتی ہوں تو وہ 2-4 دن بعد مجھے دوسرے کے گھر بھیج دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاتی ہوں تو وہ بھی 2-4 دن بعد تیسرے کے پاس بھیج کر سکون میں آتا ہے۔ بس یہ زندگی بن گئی اور کچھ نہیں۔ بس وہی سوچتے سوچتے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس بوڑھی اماں کی باتیں سن کر مجھے اپنے بھائیوں کی یاد آ گئی، اور میں خود پر ایک بار نظر ثانی کرنے لگی کہ میرے گھر سے بھاگنے کی وجہ ٹھیک بھی تھی یا نہیں۔ آخر میں بھی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی آئی، جنہوں نے میرے لیے اب تک۔ بس کچھ دیر بعد ایک اور اسٹیشن پر جا کر رکی تھی، اور جہلم پہنچنے میں ابھی کچھ اور وقت درکار تھا، مگر اب تک میرا دل بے چینی میں تھا، اور مسلسل میں اس بیگ کو باہر سے ہی ٹٹولنے کی کوشش میں لگی تھی، مگر کھولتی بھی تو کیسے؟ یہاں اتنے لوگ، اور اس آدمی نے جو کچھ کہا، اس کے وہ چونکا دینے والے الفاظ، سبحانہ سبحانہ، سنتی ہے؟ کہاں ہے بیٹا؟ جلدی کر، تجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ بس اماں آئی۔ میں تیار ہو کر جلدی سے اماں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اماں بس کر، کب تک تو اس طرح خود بھی لوگوں کے گھروں کا کام کاج کرتی رہے گی اور مجھے بھی اپنے ساتھ اسی جہنم میں ڈال رہی ہے؟
मुझे भी कब तक इस सारे मामले में अपना हिस्सेदार बनाएगी? तू अब्बा को समझाती क्यों नहीं है? अम्मा ने फिर से मुझसे नजरें चुरानी शुरू कर दी थी और कहने लगी, बस बस ज्यादा बातें ना बना और चल मेरे साथ, जैसा कहा है बस वैसा ही करना, और तुझे फजूल बातों की तरफ तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चौंक पड़ी थी। अम्मा तुझे ये सब फजूल लगता है, जबकि अच्छी तरह जानती है कि मैं गलत नहीं हूँ। देख ज़रा मोहल्ले के और भी बच्चों को, क्या मेरा दिल नहीं करता मैं भी स्कूल जाऊँ और पढ़ूँ लिखूँ? मगर हमारी ज़ात के लोगों में तो पढ़ने लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर गाँव में अलग जात पात के ये अजीब माहौल में मुझे तो तुम लोगों ने रोंद ही दिया है। मेरा बचपन जैसे स्कूल में पढ़ लिख कर गुजरना चाहिए था, मगर यहाँ तो मेरा कसूर कि मैं आम से छोटी ज़ात के घराने में पैदा जो हो गई और 10 साल की उम्र से ही मेरे हाथों में कलम किताब की जगह झाड़ू बर्तन थमा दिए गए। थू है ऐसी ज़िंदगी पर। ओहो, बस कर सुभाना, तेरे अब्बा ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा, और मेरा जीना तो पहले ही महाल है, तेरा भी जीना महाल कर दिया जाएगा। असद की माँ, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तेरी परवरिश ये रंग ला रही है। वो कुछ नहीं असद के अब्बा, मैं तो मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली आई थी, मगर इतनी देर में घर वही रोज का तमाशा शुरू हो गया था। अब्बा ने अम्मा को तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर दी थी। गज भर की जबान है तेरी बेटी की, मैं तो पहले ही कहता था इसे इतना सर ना बढ़ा, बेटी है, इसे बेटों की तरह लाड प्यार ना कर, नहीं तो ये वक्त आने पर हमारे ही आगे सर चढ़कर बोलेगी। और देख ले आज इसकी इतनी मजाल कि ये हमारे फैसलों को गलत ठहरा रही है, और फिर पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? ये कौन सा हमारे घर बैठकर हमें कमा कर खिलाएगी? इसे तो कल को पराए घर जाना ही है। समझा दियो, आइंदा ना सुनो, नहीं तो इसकी जबान खींच लूंगा। मैं आंखों में आंसू लिए सब सुन रही थी। इतनी देर में मेरे दोनों ही भाई सरकारी स्कूलों से 12 बजते ही घर आ गए थे। अम्मा खाना दो, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ तो मेरे प्यारे लाडलो, कैसी पढ़ाई जा रही है? खूब दिल लगाकर पढ़ो लिखो और मुझे अच्छा इंसान बनकर मेरे कंधों के बोझ का सहारा बनो। अब्बा के लाड प्यार और सारे नाज सिर्फ अपने बेटों के लिए थे, और मैं तो उनके लिए सिर्फ वही पराया धन, और अम्मा के साथ ही मैं काम काज के लिए मोहल्ले के लोगों के घरों में चल पड़ी थी। और 10 साल की उम्र से ही मुझे पूरे 18 बरस हो गए थे, मगर अब तक घर के हालात वही थे। अम्मा ने अब्बा की फरमाइश पर मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, और हमेशा उन्हें अब्बा की मर्जी की बिना पर मुझे पराए घर में ब्याहने की जल्दी जो पड़ी रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था, और अब तो मेरे दोनों भाइयों ने अच्छे अच्छे दफातर में नौकरी शुरू कर दी थी, और शादी के बाद दोनों ही भाइयों ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं अब्बा की बचपन की बातों पर हंस पड़ी थी कि अब्बा को तो बड़ा ही गुरूर था अपने दोनों ही लाडलों पर। आज इनमें से एक लाडला भी उनके साथ रहने को तैयार न था। रोज रोज ये चीख बाजी से मैं अब तंग आ चुकी थी। एक तरफ अम्मा और अब्बा को मुझे ब्याहने की जल्दी थी, तो दूसरी तरफ मेरी दोनों ही भावजों ने अम्मा और अब्बा के साथ लड़ाई झगड़े और तल्ख मिजाजी शुरू कर रखे थे, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही अपने अपने शौहरों को लेकर अलहदा रहने की ख्वाहिश करने लगी। इसी दौरान मेरा रिश्ता आ गया, और अब्बा ने जल्दी दिखाई और चट मंगनी पट ब्याह का इरादा पुख्ता कर लिया था। ना तो अब्बा ने लड़के की छानबीन की और ना ही कुछ सवाल जवाब। वो तो न जाने जैसे कब से अपने सर से मेरा बोझ उतारना चाहते हूँ। और फिर शादी की रात मेरे साथ वो मंजर पेश आया कि मैं तो दबे पाँव वहाँ से जान बचाकर भाग निकली थी। इतनी देर में जहलम आ चुका था, और सभी लोग अपना अपना सामान लिए बस से उतर रहे थे, मगर मेरे पाँव टकमगा रहे थे कि इस अनजानी जगह में आ तो गई हूँ, मगर आगे ये मंजिल मुझे किस सफ़र पर ले जाएगी? मैं अजीब कश्मकश में थी, और ऊपर से मेरे हाथों में ये बैग खोल कर देखूँ या इसे यहीं छोड़ जाऊँ, या फिर जैसा उस आदमी ने चलते वक्त कहा था, अगर वो बात सच साबित हुई तो मेरे तो होश ही खता हो जाएंगे, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। मैं फिर से बस से उतरते वक्त वो बैग को हाथों से टटोल रही थी, मगर जो ही बस से उतरते वक्त मेरे हाथों से वो बैग गिरा, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसमें तो वाकई मैंने जल्दी से इधर उधर नजरें घुमाई और फौरन ही सारे गिरे नोटों को उठाकर झट से बैग में डाला और चल पड़ी। शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं। मेरी नज़र सामने खड़ी उस औरत पर पड़ी जो शायद मुझे ही देख रही थी, या शायद उसने मुझे वो नोट अंदर रखते हुए देख लिया था। मैं दबे पाँव वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ी थी, या शायद मुझे ही टिकटिकी बांध कर वो जाने कब से इन नोटों को बैग में डालते हुए देख चुकी थी और चोरी के इरादे से मेरे पीछे आन पड़ी थी। सुनो सुनो ए लड़की, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। वो मुझे मुसलसल आवाज़ें दे रही थी और मैं बहरी बने वहाँ से सीधा सीधा चल पड़ी थी। मुझे मालूम है ये बैग तुम्हारे पास से कहाँ से आया है, और अगर तुम इस वक्त ना रुकी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरे पाँव ने उसी वक्त चलना बंद कर दिया था और मैं दंग रह गई थी कि ये औरत मजीद मुझसे क्या कहना चाहती है। ज़रा सुनो तो। मैं डरते सहमते पीछे घूमने लगी और लड़खड़ाती हुई जबान से कहने लगी, सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो दरअसल ये बैग मेरा अपना ज़ाती नहीं है। वो तो उस वक्त वो आदमी ने ज़बरदस्ती मुझे ये बैग
वो औरत मुस्कुरा कर एकदम ही कहने लगी, लेकिन तुम तो एक घर से भागी हुई लड़की हो, ये बात तो सच है ना, या इसमें भी कहीं झोल है? मैं सटपटाई और ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाने लगी। मगर ये सब कैसे जानती है? अब तक मुझे समझ नहीं आया था। उसने कुछ 2-4 मिनट पहले ही मुझे इस बैग के साथ देखा, फिर ये भला इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि वाकई मैं अपने घर से भागी हूँ? मैं उस औरत को ऊपर से नीचे तक नजरें जमाए देख रही थी और वो दिखने में तो किसी बड़े शहर की रहने वाली और एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत मालूम हो रही थी, और उम्र में भी मुझसे 7-8 साल बड़ी। उसकी कद-ओ-कामत भी खूब लंबी चौड़ी अच्छी माइल थी और चेहरे से ही कोई। मगर बैग से मुतालिक ये दूसरा शख्स था जो मेरे रास्ते के आड़े आया था। पहला वो स्टेशन पर बैठा शख्स और दूसरी ये औरत। कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं? मगर भला इन दोनों का आपस में क्या मेलजोल? वो एक अजीब व गरीब नजरों से देखने वाला उम्र दराज गंदे हुलिये का आदमी, और ये एक अच्छी पढ़ी लिखी अच्छे घर की दिखाई देने वाली औरत। मगर ये सब माजरा क्या था? इस बैग से जुड़ा वो राज क्या था? उस औरत ने मजीद सिर्फ इतना कहा। मेरा हाथ पकड़कर वो लोगों की नज़रों से दूर मुझे एक जगह ले गई थी। कहने लगी, ये बैग मुझे दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मगर कैसे, जबकि मैं जानती थी कि इस बैग में लाखों रुपए हैं और वो आदमी खुद इसे मेरे हवाले करके गया था कि ये तुम्हारी अमानत है। आखिर इतने रुपयों को देखकर भला किस इंसान के दिल में लालच ना आती? मैं भी तो एक इंसान थी, और इंसान तो वैसे ही खता का पुतला होते हैं। मैंने वो बैग जोर से दबाकर कहा, नहीं, ये मेरा बैग है, मैं इसे नहीं दे सकती, आप चली जाए यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ, ये बैग तुम्हारा नहीं है और इसे अपने साथ तुम इस स्टेशन से आगे नहीं ले जा सकती। मगर मैडम, क्यों, जबकि वो आदमी ने तो कहा था। उस पर उस औरत ने कहा, अच्छा सुनो, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हें कहाँ जाना है? मैं डर सी गई थी कि ये कैसा सवाल कर डाला, और तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला? मैं फिर से खामोश खड़ी रही, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल का कुछ पता ना था। मैं जल्दी से घर से भागकर यहाँ झेलम की रात 2 बजे आने वाली बस की मुसाफिर तो बन गई थी, मगर मेरा यहाँ कोई जान पहचान का या रिश्तेदार का कोई ठिकाना न था। और वो बूढ़ी औरत जो मुझे बस में मिली थी, मैं बैग को अपने सीने से जोर से दबाए हुए चारों तरफ नजरें घुमाकर उसी बूढ़ी अम्मा को तलाश करने लगी थी कि उनका सहारा लेकर मैं उस वक्त अपनी जान बचा सकती थी। मगर ये औरत भला कैसे मेरे बारे में सब जानती थी? ये सवाल अब भी मुझे मजीद ताज्जुब में मुब्तला कर रहा था। मगर मेरी किस्मत का मुझे यहाँ जेहलम तक लाना मेरी समझ में जब आया तो मैं वाकई कुदरत के अनजाने फैसलों से हैरत ज़दा रह गई थी। बहरहाल वो औरत चाहती तो मुझे इस बैग के चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर चुकी होती, मगर उसने बेहद प्यार से कहा, अगर तुम इस बैग से जुड़ा वो राज जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ और अपने एक नए सफ़र का आगाज़ करो, और जब तक ये बैग तुम्हारी ही अमानत है तुम इसे अपने साथ ही रख सकती हो। मेरे साथ? मैं सोच में पड़ गई थी, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उस अनजान औरत के साथ चल पड़ी थी और रास्ते भर वो मुझसे इधर उधर की जहलम से जुड़ी बातें हंस हंस कर करती रही, और उसने मुझसे मेरे मुतालिक, मेरे माजी के मुतालिक कुछ ना पूछा। और ताज्जुब कि उसने अब तक ये जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कि मैं घर से क्यों भाग निकली, जैसे उसकी पूरी तरह तवज्जो सिर्फ इस बैग से जुड़ी थी। अब तो मेरी तवज्जो का मरकज़ भी ये बैग, इसमें मौजूद वो लाखों रुपए बन चुके थे कि मुझे जानना ही होगा कि इस बैग से ऐसा कौन सा राज जुड़ा है, और मुझे इस राज को जानने के लिए इस औरत के साथ वक्त गुजारना ही होगा। और फिर इसमें हर्ज ही क्या है? इस बहाने मुझे रहने को ठिकाना भी मिल जाएगा और शायद 2 वक्त की रोटी भी, क्योंकि आदत और इखलाक से तो ये औरत अब तक बहुत ही अच्छी मालूम हो रही थी। और कुछ ही देर में वो मुझे अपने साथ एक बड़े से घर में ले आई थी और कहने लगी, जब तक मर्जी यहाँ रहो, आराम करो, रात बहुत हो गई है, बाकी बातें कल करेंगे। वो मुझे खुदा हाफिज कहकर चली गई थी और मैं सारी रात अजीब कश्मकश में मुब्तला रही कि भला इस औरत ने मुझसे दोबारा इस बैग से मुतालिक कुछ न पूछा और मुझे इस बैग के हमरा अकेला ही छोड़ गई। मेरे दिल में अजीब अजीब सवालात आने लगे थे। मैंने शदीद बेचैनी के साथ वो बैग खोलकर देखना चाहा और मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी जब उसमें से लाखों रुपए हजारों के नोटों की सूरत में अपने हाथों से निकाले। मगर ये नोटों से भरा बैग वो अनजान अजीब व गरीब आदमी मुझे क्यों दे गया था, जबकि वो चाहता तो इस बैग को खुद भी रख सकता था, या फिर स्टेशन पर मौजूद हजारों अफराद में उसने मुझे ही क्यों चुना। मगर जो ही इन नोटों के बीच मैंने एक चीज़ देखी तो मेरे दिमाग में फौरन ही कोई टीवी ड्रामों या फिल्म का सीन आने लगा, और मैंने सब कुछ घबराते हुए वहीं पर ऐसे ही ज़मीन पर गिरा छोड़ दिया। और मेरी उलझन तो बढ़ती ही जा रही थी, और वो अजीब आदमी, फिर ये औरत, कहीं मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। घर से भागी तो भागी सुबहाना एक मुसीबत से जान बचाकर, और आ पहुंची एक नई मुसीबत को गले लगाने। मैंने यहाँ और मजीद रुकना भी मुनासिब ना समझा और रात के इस अंधेरे में यहाँ से भागने की कोशिश में कमरे से निकल पड़ी। मैं चोरी छुपे अंधेरे में घर से भागने के लिए दरवाजे तक आ पहुंची थी कि अचानक मेरा हाथ पकड़ती हुई वो औरत कहने लगी, सुबहाना, तुम इस तरह यहाँ से इस अधूरी कहानी को इख्तिताम पजीर करे बगैर ही भाग नहीं सकती। मगर क्यों नहीं मैडम, मुझे माफ़ कर दें, मैं वो बैग नहीं रख सकती, और ना ही मुझे वो लाखों रुपए चाहिए। आप इसका जो चाहे करें, मुझे कोई गर्ज नहीं। वो औरत मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी और हंसकर कहने लगी,
लगता है वो बैग तुमने खोल ही लिया है और उसमें मौजूद लाखों रुपए के साथ वो चीज देखकर तुम घबरा गई हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वो औरत फिर से जोर से हंस पड़ी। सुभाना सुभाना, तुम इतनी नासमझ और बेवकूफ हो नहीं जितना मैं तुम्हें समझ रही थी। मगर समझ नहीं आता तुम घर से कैसे भाग निकली। आखिर ऐसी भी कौन सी वजह, बल्कि तुम ही नहीं तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो बिना सोचे समझे घर से भाग निकलती हैं और फिर इस बैग के हाथों लालच में पड़ जाती हैं और फिर उनके साथ। मुझे उस वक्त इस औरत ने काफी समझा बुझा कर रोक लिया था और अगले दिन वो औरत पूरा दिन घर में मौजूद न थी और मैं सोई हुई थी। जब अचानक से रात के 2 बजते ही मुझे वो औरत फौरन ही अपने साथ बिठाकर एक स्टेशन पर ले गई थी और मेरे तो होश ही उड़ गए थे जब एक घबराई हुई अकेली तनहा लड़की स्टेशन पर बैठी थी और ठीक वही मंजर मेरी आंखों के सामने पेश आया। जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, वही चादर में छुपा आदमी उसके पास जा बैठा और उसे वही बैग देकर कहने लगा, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी अमानत है। और ठीक इसी तरह मुझे वो मैडम रोज किसी न किसी स्टेशन पर ले जाती थी और ये मंजर मुझे खुद अपनी आंखों से देखने को मिलता था। मगर इस बैग में मौजूद वो रकम और इस रकम के बीच वो रूह लर्जा देने वाली चीज देखकर मेरे तो होश ही खता हो गए थे। मगर ये लड़कियां, क्या ये सब ही? मगर जब एक रोज मैडम ने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो इन लड़कियों के साथ क्या होता है जिनके हाथ ये लाखों रुपयों से भरा बैग लगता है? मैंने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। मैडम ने मेरा हाथ पकड़कर एक ऐसी जगह ले गई थी जहाँ सब कुछ देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे कि जिन जिन लड़कियों ने वो बैग खुशी खुशी ले लिया था और जिस स्टेशन पर वो उतरी थी, ठीक उसी जगह एक दूसरा आदमी उन्हें देखते ही समझ जाता था न यही वो लड़की है जो उनका अगला शिकार है। और बहाने से उन लड़कियों को एक जगह ले जाया जाता था और फिर उनके साथ बैग पर लगी वो चिट उन आदमियों को चौकन्ना कर देती थी कि यही वो लड़की है और इसी बैग में वो लाखों रुपए हैं। मैं उन दिनों रोज स्टेशन पर घर से भागी हुई बेसहारा लाचार लड़कियों को देख रही थी जिनके हाथ में वो लाखों रुपए होते थे और फिर अगले ही स्टेशन पर उनको बहाने से एक आदमी अपने साथ ले जाता था और उनका ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर मेरे तो होशो हवासी खता हुए जा रहे थे। और मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, अल्लाह ने इस मैडम को ठीक वक्त पर उस दिन मेरे सामने ला खड़ा किया और मैं उनके साथ यहाँ आ गई, नहीं तो आज मेरे साथ भी वही कुछ होता जैसा उन लड़कियों के साथ। एक रोज मैं मैडम के रूबरू खड़ी थी और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी और कहने लगी, अल्लाह के वास्ते मैडम, आप मुझे अपने घर वापस भेज दें, यहाँ और मजीद नहीं रहना चाहती। इससे अच्छी तो मैं अपने वालिदैन के घर में उसी मुश्किल मुसीबत में जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही थी और अम्मा के साथ घर घर जाकर काम काज करके 2 वक्त की रोटी खा रही थी। मगर मेरा बाप, जिसने बिना सोचे समझे मेरा रिश्ता एक ऐसे शख्स से कर दिया था जो एक नशावर मर्द था, जो मुझसे उम्र में भी बड़ा था और साथ ही उसका मेरा कोई मेलजोल नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी वही जिंदगी गुजारूं जो मेरी माँ ने गुजारी और अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा बाप दूं जैसा मेरा अपना बाप था। मगर यहाँ आने के बाद, घर से भागने के बाद सुभाना अच्छी तरह जान गई है कि हम गरीबों की किस्मत में खुशी के सिर्फ 2-4 दिन ही लिखे होते हैं और गमों और दुखों के रोने सारी उम्र के। उस वक्त वो मैडम मुस्कुराने लगी और कहने लगी, सुभाना, मगर तुम्हारी किस्मत ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम हमारी मदद करो, तुम्हें इसका अजर भी मिलेगा और इनाम भी, और देखना तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। और यूं समझो अल्लाह ने तुम्हें इसी नेक काम की गर्ज से घर से भागने पर मजबूर किया था और फिर ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा था और किस्मत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता। मैं उन मैडम की बातों से मुतमईन थी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मगर जब मैडम ने मुझे अपनी असली पहचान बताई और सारे हालात से वाकिफ किया कि इसी वजह से मेरी नज़र शुरू से तुम पर थी, जब तुम जहलम के लिए आने वाली बस में सवार होने जा रही थी और मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं पहले ही देख चुकी थी कि तुम्हारे हाथ वो बैग लग गया है और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी उन लोगों के पहुंचने से पहले ही तुम तक पहुंच गई और तुम्हें इस जहन्नुम से बचा लिया, नहीं तो तुम आज उन बाकी लड़कियों की तरह पैसों की लालच में उनके हत्थे लग जाती और आज तुम भी हमारी गिरफ्त में होती। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि घर से भागने वाली लड़कियों को सबसे पहले पैसों की लालच ही अपनी तरफ माइल करती है, और ख़ासकर ऐसे इलाके या ऐसे गांव जहां से तुम आई हो। गुर्बत में रहने वाली कम उम्र लड़कियां अक्सर घर से भाग जाती हैं और इस तरह उनके हत्थे चढ़ जाती हैं। मैं ये सब सुनते हुए कहने लगी, मगर मैडम, आप कौन हैं? क्या वाकई आप ये? हाँ, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और इस कहानी का इख्तिताम उन सभी लड़कियों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। मगर मैडम, कैसे? देखो सुभाना, मैं एक ऐसी ही लड़की की तलाश में थी कि जो मेरी मदद कर सके और उस दिन तुम तक मैं पहुंच ही गई थी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें सारी तफसील गवाही की सूरत में खुद बतानी होगी और साथ ही उस आदमी का हुलिया भी जिसने तुम्हें वो बैग दिया था। मैंने जब उस आदमी का आधा अधूरा हुलिया पुलिस को बताया और सारी तफसील स्टेशन से 2 बजे जहलम जाने वाली बस में सवार होते वक्त जो कुछ हुआ और पुलिस ने मेरे बयान को गवाही बनाकर कोर्ट में पेश किया, और जब मेरे बताने से उस चादर में मुंह छुपाकर बैठे हुए आदमी को पकड़ कर लाया गया तो मेरी तो रूह ही लरस गई थी। उस दिन मैं उसकी गिरफ्त से बच निकली थी। वो आदमी, मुझे वो नोटों से भरा बैग देने वाला वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वही मर्द था जिसे अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर डाला था। और उस वक्त मैं उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं सकी थी, मगर उसकी वो अजीब सी आंखें, वो अजीब हुलिया मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।
उस रात मैं शादी छोड़कर यहाँ भाग निकली थी और वो शख्स अच्छे से वाकिफ था कि मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी होंगी और उसने फ़ायदा उठाकर फ़ौरन ही मेरी मजबूरी को अपना निशाना बनाया। और मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो आदमी एक नशावर है। आज पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ा स्मगलर है और जगह जगह अपने इस काम को जारी रखा हुआ था। वो खुद ही नहीं बल्कि उसके ग्रुप के और लोग भी इस तरह लड़कियों को फंसाकर उन बैग के जरिए कई गैर कानूनी चीज़ों की स्मगलिंग करने के लिए इन लड़कियों को मजबूर करते हैं और वो लड़कियां उनके जाल में फंसकर वही काम को सरअंजाम देना शुरू कर देती हैं। कुछ पैसों की लालच में खुशी खुशी तो कुछ घर से भागी हुई मजबूरी के तहत। और फिर पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता। लोग तो भूल जाते हैं कि वो चाहे हलाल का पैसा हो या हराम का, उन्हें तो गर्ज सिर्फ पैसों की लालच से होती है। और मैं सुबहाना मैंने कोर्ट के सामने फिर से उस शख्स के खिलाफ सारी गवाही दी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस रात की मंजर कशी भी की कि जिस रात शादी छोड़कर मैं घर से भाग निकली थी। उस रात मैंने अपने ससुराली को फ़ोन पर बात करते सुन लिया था कि ये लोग मुझे उसी रात निकाह करवाकर मुंह मांगे दामों में गलत लोगों की इन्हीं गैर कानूनी कामों के लिए बेचने चले थे। मगर मैं दबे पाँव वहाँ से फ़ौरन ही भाग निकली थी और शायद मेरे होने वाले शौहर ने मुझे उस रात घर से भागता हुआ देख लिया था और अपने जाल में फंसाने के लिए स्टेशन तक मेरा पीछा किया और फिर अपनी वही चाल चली जो बाकी लड़कियों के साथ। और कोर्ट के सामने ये भी बात तफसील से बताई कि उन पैसों के बीच वो मुनशियात की चीज़ें जिनकी स्मगलिंग की जा रही थी और अपना वो बैग कोर्ट के हवाले किया जिसमें लाखों रुपए के साथ वो स्मगलिंग की गैर कानूनी चीज़ें भी मौजूद थी। पुलिस ने जल्द ही उन तमाम जगहों पर छापे मारे जहां ये गैर कानूनी कामों का बिजनेस चल रहा था और उन तमाम ग्रुप के लोगों को गिरफ्तार करके उन तमाम लड़कियों को बाजियाब करवा ही लिया था। उस स्मगलर को भी सजा दी गई थी और फिर जाते वक्त मैंने मैडम से रुख्सत ली। वो बहुत ही खुश थे और मुझे मेरा इनाम जो उन लोगों की तरफ से दिया गया था पूरे 10 लाख देकर वापस ही रवाना कर दिया था। और मैं वापस आई तो मेरे अब्बा की वफात हो चुकी थी और अम्मा के साथ हंसी खुशी गुजर बसर करने लगी। किस्मत ने हमारे दिन बदल दिए थे और मेरा घर से भागना और जहलम तक का सफर इस मंजिल की तरफ ही लिखा था। ये सब कुदरत के अजीब फैसले हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता